Good morning, everyone. I'm Prerna Sudan once again, continuing with Python. In my last two videos, I introduced you with Python, the programming language. I told you about its advantages and how to start Python, its modes like interactive mode and script mode, and I explained only about interactive mode, in which I told you about various mathematical and logical operators. I told you how to perform calculations using them on interactive mode. I explained about variables and print function of Python. Today, in this video, I'll be explaining about script mode of Python. Okay. So in my last video, as I told you that there are two Python modes, one is interactive mode and one is script. Interactive mode, as you can understand, the way I'm interacting with you people right now, okay? I'm talking to you, you can ask me any question in description and then I'll give you answer, okay? One-on-one talking, that is interactive mode. On interactive mode, you get a 3 greater than sign, that is Python prompt. And on the Python prompt, you write any command, and the moment you press enter, you get the result, okay? Suppose you want to perform some calculation, let me show. This is Python, I'm opening. I have opened Python. Suppose you want to, how can you increase the size? You have to go to um, options and configure idle, and from here, as you can see, it is written size. You can increase the size. Let me make it 20 and I say apply. Okay, and when I'll come back here, the size has increased. Okay, so suppose I'm writing 5 plus 5 and I press enter. The moment I'll press enter, you can see the result 10 has come. Okay, or if I write 5 is greater than 8 and I press enter, the result is false because obviously 5 is not greater than 8. Same way, if I use print function, I write print, then I give single quotes, hi, this is my Python class. And I give quotes and bracket and I press enter. It will execute the command for me and it will show the result, whatever I have written in codes. And I hope you all remember that whatever text we write, we have to put single quotes or double quotes at the beginning and at the end of the text. Okay. If I want to print number, then there is no such need. You can simply write print and within the bracket, you can write your numbers and it will print it for you. Okay. Same way, if you want to print both things together, I'm printing hi, the total of 3 and 6 is. Okay, and then I give quotes. I'll have to give comma. Comma is a separator, and as I have written total, so I'll have to use plus sign. So after comma, I have written 3 plus 6. So when I'll execute this command, it will automatically calculate the result for 3 and 6 and will show me in the result. But if I'll enclose 3 and 6 also in the codes, then what will happen? Suppose I'm writing the same command, just copying it, and then I'm pasting it. And what I'm doing, I'm removing this code from here and I'm putting that code in the end. And now I'm pressing enter. Now you can see that it has printed 3 plus 6 as it is. In the above statement, you saw that when I wrote 3 plus 6 outside the codes, it gave me the answer 9. But when I'm writing it inside the code, it is printing it as it is. In my last video, I explained you about a print statement and I told you that whatever you want to print as it is, you have to write that in codes. Codes can be single quotes or double quotes. And if you want to perform calculations, do not write it inside the codes. Okay. So this was the interactive mode, which I had explained in my last class. Okay.
So in today's class, I'll be telling you about script mode. Because if you want to write long commands, obviously you would like to save them. Okay. And first you want to write whole program and then you want to see the output. So with the interactive mode, these both things are not possible. Okay. So for that we use script mode. So this is my script mode. Introduction to Python part 3. Script mode. So as you already know that Python has two modes, interactive and script. So in script mode, basically we write our code in a file format. There is a file, as you can see on the screen. Untitled is the name of the file because I have not saved that file in with any name till now. I have just opened a new file. You have three buttons, that is minimize, maximize and close. You have different menus: file, edit, format, run, options, window and help. Okay. All these menus contain different commands to help you performing different actions in Python. Okay. So in script mode, basically, you write all the commands together in the form of a file. आप एक file में जैसे सब कुछ लिखते हैं, तो Python के script mode में you get a page जहाँ पे आप अपने सारा code लिखते हैं, and then you'll have to save that file. Okay. And by default, whatever file you save, that is saved with the extension as .py. Now, what is this extension? Whenever you save a file, your file is saved um, in such a form that you need to give file name and extension. Okay. Why extension? Because suppose you are creating a file with the name my file. Okay. You have created that file in MS Word also, in MS Excel also, and in Python also. And all three files you have named as my file. How will you recognize later कि आपकी कौन सी file वर्ड फाइल है, कौन सी एक्सेल फाइल है? उसमें आपको कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है? विद द एक्सटेंशन नेम. जब आप वर्ड की फाइल सेव करते हो तो उस फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल आप बोलते हो. ठीक है. जब एक्सेल की फाइल आप सेव करते हो तो .xls एक्सटेंशन से आप सेव करते हो. ऐसे ही जो पाइथन की आप फाइल्स होती हैं वो .py फाइल्स होती हैं. कुछ ऐसी फाइल होती है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जो एग्जीक्यूट करती हैं आपके जितने भी सॉफ्टवेयर जो एग्जीक्यूट होते हैं, जो रन होते हैं, वो .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल है. ठीक है. ऐसे ही आपकी जो म्यूजिक की फाइल है वो MP3 है, वीडियो फाइल आपकी MP4 है. इस तरह से एक JPG आपकी फाइल, इमेज फाइल है. तो जो भी एक्सटेंशन है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि ये फाइल किस तरह की है. ठीक है. सेम वे व्हेन यू सेव a Python file, वो by default .py एक्सटेंशन से स्टोर हो जाती है. ठीक है. आपको दो स्टेप में काम करना पड़ता है. Number 1, you create a file and save it. Number 2, you will have to run that file to see the output. Okay. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. आप पहले एक फाइल बना के उसे सेव कर लेंगे. जब आप उस फाइल को सेव कर लेते हैं तो आपको आउटपुट नहीं नजर आती है. स्क्रिप्ट मोड में आपको आउटपुट नहीं नजर आती है. ठीक है. तो आप फाइल को बना के सेव कर ले स्क्रिप्ट मोड में. उसके बाद आपको उस फाइल को रन करना पड़ेगा. जब आप उसे रन करेंगे तो वो इंटरैक्टिव मोड में जाके रन होगी और वहां पे आपको आउटपुट दिखाएगी. ये कैसे करना है? विल डू इट. सो what is the use of script mode? Script mode helps you to see that file again and again. अभी देखो मैंने Python में कुछ commands लिखी थी. अब अगर मैं दोबारा से Python open करूं, I'll just show you. I'm again opening the Python. Where are my commands? They are gone. I can't see my commands right now. Why? Because the command which I had written, they were gone the moment I switch off the I close the Python. Okay. Or I switch off the computer. But if I want that my program should be saved for later use, कि मैं उसको बाद में भी अपने program को use कर सकूं, तो मुझे उसको script mode में ही करना पड़ेगा. Okay.
नेक्स्ट, हाउ टू ओपन स्क्रिप्ट मोड। बहुत ही आसान है टू ओपन स्क्रिप्ट मोड। आप सबसे पहले पाइथन ओपन करें। पाइथन ओपन करने के बाद ये आपकी इंटरेक्टिव मोड की विंडो आ जाती है। जब आपकी ये इंटरेक्टिव मोड की विंडो आ जाती है तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो फाइल, एडिट, शेल, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है फाइल, उस पे आप क्लिक करो और फर्स्ट ऑप्शन है न्यू फाइल, आप उसको क्लिक कर दो तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। और आप कंट्रोल एन शॉर्टकट की जो है उसको भी यूज करके पाइथन की फाइल ओपन कर सकते हो। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, ये मैं आपके साथ बहुत देर से डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में जब आप कुछ भी टाइप करते हो तो आपका इंटरप्रेटर उसको डायरेक्टली उसी समय आपको आंसर दिखा देता है। ठीक है। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में आप कंप्लीट कोड जो है वो पहले एक फाइल में लिख लेते हो। ठीक है। दूसरी बात, इंटरेक्टिव मोड में आपको स्मॉल 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 स्निपेट्स ऑफ कोड्स आप लिख सकते हो। आपने छोटी सी चीज लिखी, एंटर किया, फटाफट उसका आंसर देख लिया। लेकिन पाइथन स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं होता। वहां पे आप पहले पूरा कोड लिख लेते हो, फिर आप उसको रन करते हो। फिर अगर उसमें कुछ एरर होता है तो पाइथन आपको उस एरर के बारे में बताता है, फिर आप उस एरर को ठीक करते हो। ठीक है। नंबर टू, इंटरेक्टिव मोड में आपकी फाइल सेव नहीं हो सकती। अगर आप फाइल सेव करना चाहते हो तो आपको स्क्रिप्ट मोड में ही काम करना पड़ेगा। नंबर थ्री, स्क्रिप्ट मोड में जो आपकी फाइल सेव होती है उसको .py एक्सटेंशन मिलती है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। और स्क्रिप्ट मोड में कोड लिखने का ये भी फायदा है कि आप उस कोड को बार बार यूज कर सकते हो। ठीक। नाउ, आप जब स्क्रिप्ट मोड ओपन कर लेते हैं तो स्क्रिप्ट मोड में नॉर्मली जैसे आप वहां पे कमांड लिखते हैं, आप यहाँ पे भी कमांड लिख सकते हो। पर आप यहाँ देखो, मैंने दो कमांड्स लिखी हैं। मैंने लिखा प्रिंट हाई दिस इज माय फर्स्ट कोड, फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। फिर मैंने लिखा प्रिंट आई एम एंजॉयिंग पाइथन, दोनों मैंने किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली कमांड्स लिख सकते हैं अपनी जितनी मर्जी, हम जितना मर्जी लंबा बड़ा हम कोड लिख सकते हैं। ठीक। आफ्टर राइटिंग द कोड यूल हैव टू सेव इट। जब पहली बार आप उसको सेव करेंगे तो सेव एज करके सेव करेंगे। पहली बार सेव करने के बाद मान लो आप उसमें और कुछ चेंजेस करते हो, कुछ ऐड करते हो, कुछ डिलीट करते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सेम फाइल को सेव करोगे तो आप खाली सेव को या कंट्रोल एस को प्रेस कर सकते हो। ठीक है। तो आप फाइल में जाके सेव एज ऑप्शन से उसे सेव करोगे। जब आप सेव एज को क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेव एज का। सेव एज डायलॉग बॉक्स में ये देखो, फाइल टाइप जो है पाइथन फाइल सेव हो रही है। ठीक है। और यहाँ जहां लिखा है फाइल नेम, यहाँ पे आप फाइल का नेम दे सकते हैं। यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पे पाइथन में एक पाइथन 3110 नाम का मेरा फोल्डर बना हुआ है जिसमें ये सेव हो रहा है। अगर आप अपनी मर्जी से इसको सेव करना चाहते हो तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपके सारे फाइल्स, फोल्डर, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट सब कुछ आ रहा होता है। आप वहां से अपनी डायरेक्टरी चूज करके और वहां पे भी अपनी फाइल सेव कर सकते हो। ठीक। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको कि ये देखो, यहाँ से आप अपनी फाइल जो है चूज कर सकते हो जिस फोल्डर में आप डालना चाहते हो। यहाँ पे आपने फाइल नेम दिया और यहाँ नीचे सेव बटन को आपने क्लिक कर दिया तो आपकी फाइल सेव हो जाती है। इतना करके देख लेते हैं पहले, उसके बाद रन करते हैं। पाइथन मैंने ओपन किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि इस तरह से पाइथन में यहाँ ऊपर सारे मोड्स आ रहे हैं, फाइल, एडिट, शेल, डीबग, सब मोड्स आ रहे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, फाइल को क्लिक करती हूँ। वंस आई क्लिक फाइल इट विल open, the drop down options will open. Okay, then I'll click on new file, or I can press Control N, so I'll press new file. The moment I'll press new file, I'll get this script mode. Okay, in the script mode you can see that it is showing me untitled on the title bar. Untitled means अभी मैंने इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है। I have minimize, maximize and close button, and then I have a menu bar, and this is the cursor which is waiting for my command. Okay, तो मैं यहाँ पे इसको command देती हूँ hi. Sorry, I have to use print function. Print hi, I am adding two numbers. Okay,
and then I write print bracket my first number is 10. Print my second number is 20. Print 10 plus 20. अब आप देखो मैंने लिखा प्रिंट, फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी जिसे मैंने सिंगल कोट्स में लिखा, फिर मैंने लिखा प्रिंट, फिर मैंने एक और सेंटेंस स्टेटमेंट लिखी जिसे मैंने कोट्स में लिखा, फिर एक और लिखी। लेकिन जब मैंने प्रिंट 10 प्लस 20 लिखा तो मैंने कोट्स नहीं लगाए क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करा रही हूँ। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव करती हूँ, फाइल सेव एज, जैसा कि मैंने आपको समझाया। जब मैंने सेव एज को क्लिक किया तो ये मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मुझे इसे पाइथन में ही सेव करना है। मैं इस फाइल का नाम रख रही हूँ calculations, okay, and I say save. The moment I press save, आप यहाँ देखो जहां ऊपर untitled लिखा था टाइटल बार पे सबसे ऊपर, अब यहाँ लिखा हुआ है calculations.py। उसने ऑटोमेटिकली ये नाम ले लिया और ये फाइल मेरी सेव कहाँ है, ये पूरा पाथ है सी ड्राइव में, यूजर्स में जाके, लेनोवा में जाके, ऐप डेटा में जाके, लोकल में जाके, प्रोग्राम्स में जाके, पाइथन में जाके, पाइथन 310 में जाके calculations.py मेरी सेव है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइल को सेव कर लेते हैं कि कैलकुलेशंस फाइल है, इसका मतलब मैंने इसमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म किए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप फाइल बना लेते हो तो खाली आपकी फाइल सेव हो जाती है, आपको आउटपुट नजर नहीं आती है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट नजर कैसे आएगी। यहां तक हमने कर लिया कि हमने नाउ रन द कोड, फाइल को एग्जीक्यूट करना यानी रन करना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वंस द कोड इज सेव, आपने देखा कि वहां पे एक मेन्यू है रन मेन्यू। ओके, आपको रन मेन्यू को क्लिक करना है, उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा रन या फिर रन मॉड्यूल, बोथ आर सेम थिंग। ओके, रन और रन मॉड्यूल कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। और अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो F5 फंक्शन की आप प्रेस कर सकते हो। हर कीबोर्ड में टॉप रो पे F1 F2 F3 ऐसे करके लिखा होता है, उनको बोलते हैं फंक्शन कीज। ओके, F5 फंक्शन की को आप प्रेस करोगे तो आपका कोड रन हो जाएगा। तो हमने जो अपना कोड लिखा है उसको हम रन करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा कोड। अब इसको हम रन कर लेते हैं, रन मॉड्यूल। और ये देखो जैसे ही मैंने इसे रन किया, मैंने आपको बताया था इंटरेक्टिव मोड में हमको नजर आएगा, तो इंटरेक्टिव मोड में लिखा हुआ आ गया, हाय आई एम एडिंग टू नंबर्स, माय फर्स्ट नंबर इज 10, माय सेकंड नंबर इज 20 एंड द रिजल्ट इज 30। तो दिस इज द वे with which you can run your code. Okay, so let us open PPT again. Now here I have shown कि आप कैसे इस कोड को रन कर सकते हो। ठीक है, हमने रन को क्लिक किया और यहाँ पे हमको आउटपुट नजर आ गया। नाउ इट इज नॉट ओनली कि आप प्रिंट से सिर्फ नंबर्स और अल्फाबेट्स ही प्रिंट कर सकते हो, आप प्रिंट के साथ डिफरेंट पैटर्न्स यूज कर सकते प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने ये देखो स्टार्स की लाइंस प्रिंट की हैं। ठीक है, और आप प्रिंट के साथ क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट शेप्स प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया है और मैंने इस रेक्टेंगल को प्रिंट किया है। ठीक है, इसको हम एक बारी प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं कि हमने ये कैसे किया है। ठीक, स्क्रिप्ट मोड में आ जाते हैं, इसी प्रोग्राम में चेंज कर लेते हैं। प्रिंट हमारा लिखा हुआ है और इस लाइन को फिलहाल हटा देते हैं। हम कोई भी सुंदर सा पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। सपोज मैं चाह रही हूँ @ साइन प्रिंट हो जाए, तो मैं @ दूंगी यहीं तक और उसके बाद फिर से इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। इसको Ctrl+C किया मैंने और यहाँ आके
कंट्रोल V कर दिया और इसको भी हटा दिया और कंट्रोल V कर दिया और मैंने इसे कंट्रोल S कर दिया। मैं इसे फाइल सेव या कंट्रोल S कर सकती हूँ। नाउ अगेन आई गो टू रन एंड रन मॉड्यूल और आप ये देखो ये मेरा मॉड्यूल रन हो गया और मेरा वो पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो गया। सपोज ये काम कब आता है, सपोज आप कोई मेन्यू बना रहे हो, ठीक है, और आपने एक कमांड, आपने ऊपर एक प्रिंट दे दिया और अब आप यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हैं आई दिस इज माय मेन्यू, ओके, और यहाँ पे आपने वापस इसको पैटर्न को क्लोज कर दिया। नाउ फाइल सेव, नाउ रन रन मॉड्यूल। तो आप ये देखो, हाय दिस इज माय मेन्यू, सॉरी दिस इज माय मेन्यू, वैसे ही लिखा आ गया। आप इसमें थोड़ी स्पेसिंग करना चाहते हो, आप इसमें स्पेसिंग भी कर सकते हो, आप इसमें थोड़े से और ये बढ़ा दो, ये मैं शिफ्ट की के साथ प्रेस कर रही हूँ और इसको स्पेस देके दूर कर दो, रादर इसको इधर से भी थोड़ा हम दूर कर देते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन ब्यूटिफाई योर वर्क, ओके, आप अपने काम को सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप कोई मेन्यू ड्रिवन चीज बना रहे हैं तो आप उसको इस तरह से सुंदर बना सकते हैं कि वो देखने में अच्छा लगे। और उसके बाद फिर से फाइल सेव एंड रन रन मॉड्यूल। तो आप ये देखो ऊपर वाला, आप देखो कितना उसके साथ बिल्कुल टेक्स्ट के साथ बिल्कुल क्लोज था, मेन्यू के एकदम साथ @ आ रहा था। अब नीचे मैंने उस स्पेस को बढ़ा दिया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यूज कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपने प्रैक्टिस करना है, आपने स्टार शेप बना के देखनी है, ट्रायंगल बना के देखना है, आपने प्रिंट फंक्शन यूज करके डिफरेंट चीजों को प्रिंट करके देखना है, आपने स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम लिखना है कि अगर 2 नंबर्स हैं आपके पास, उनको वेरिएबल में डालो, वेरिएबल ए और बी, 2 वेरिएबल लो, उन दोनों नंबर्स को उसमें डालो, उसके बाद उनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, ओके, यूजिंग मॉड्यूलस, finding out remainder, raise to the part, all the functions whatever I have taught you in the previous videos, you have to write code to perform calculations and then run it और देखो कि आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस वेल, हैव अ गुड डे।